سمندری میں جان بچانے والی ادویات کی قلت، مریض شدید پریشان۔ مریضوں کو انسولین، دل اور معدہ سمیت متعدد ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ مریضوں نے حکومت سے فوری ادویات کی قلت دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سمندری میں جان بچانے والی ادویات کی قلت ہو گئی ہے۔ مریضوں کے مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ مریضوں نے حکومت سے فوری ادویات کی قلت دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید بات کریں گے وقاص سے۔ وقاص بتائیے گا۔ سمندری میں دیکھا جائے تو مریضوں کے لیے ادویات جو ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں، اور خاص طور پر دیکھا جائے تو جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ یہاں پر میسر نہیں ہیں، جس کے بعد مریض بھی خوار ہو رہے ہیں، کسٹمر بھی خوار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کسٹمر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کون سی ادویات نہیں مل رہی اور کیا مشکلات اس وقت؟ جی میں سمندری میں موجود ہوں جی، یہاں پہ کافی ساری ادویات ہیں جو بالکل نہیں مل رہی، ٹھیک ہے جی، اور میں نے کافی زیادہ سٹور وزٹ کیے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، جن میں مجھے بالکل بھی دوائیاں نہیں ملیں، اور میں اب ادھر ایک سٹور پہ پہنچا ہوں، یہاں پہ مجھے کچھ ادویات ملی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافی ساری ایسی دوائیں ہیں جو بالکل نہیں مل رہی، جن میں انسولین کافی مہینوں سے شارٹ ہے، وہ بالکل نہیں مل رہی، اور ایک دل کی بیماری کے لیے گولی ہوتی ہے کارڈینٹ، وہ بھی نہیں مل رہی۔ تو جناب ہماری حکومت سے اپیل ہے، جناب جو دوائیں ہیں وہ مؤثر طریقے سے عوام میں پہنچائی جائیں تاکہ ان کو آسانی سے دستیاب ہوں۔ کیا کہیں گے کیوں شارٹیج ہے؟ جی سر، وہ میڈیسن بہت ساری شارٹ ہیں، جن میں ہارٹ کی میڈیسن ہے، آکسلیپسی کی میڈیسن ہے، انسولین ہے شوگر پیشنٹ کے لیے، بہت ساری دشواری کا فیس کرنی پڑ رہی ہیں پیشنٹ کو، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ ہم اپنی ساری میڈیسن کو مینٹین رکھتے ہیں تاکہ کسٹمر کو مل سکیں۔ مارکیٹ کی جو پوزیشن ہے اوور آل ٹوٹلی ہی میڈیسن شارٹ ہے، جن میں ہارٹ کی ہیں، بہت ساری میڈیسن ہیں جس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ سروائیو کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ادویات شارٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مریضوں کو ادویات دی جائیں تاکہ ان کا سسٹم جو ہے چلتا رہے، اور شارٹیج کی وجہ سے مریض بھی خوار ہو رہے ہیں، کسٹمر بھی خوار ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ میڈیکل سٹور مالکان وہ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں۔ دوائیاں نہیں مل رہی، دوائیاں دی جائیں۔ وقاص بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ کی بات کریں تو جنگ میں ڈاکٹرز اور پولیس کی لڑائی میں مریض در بدر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز چوتھے روز بھی احتجاج پر ہیں۔ پی ایم اے کی جانب سے او پی ڈی میں ہڑتال جاری ہے۔ مریض بغیر علاج معالجے کے گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائے گا کہ کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ڈاکٹر جو ہے وہ چوتھے روز پر بھی احتجاج پر ہے، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 4 دن سے لگاتار آنے والے مریض بغیر علاج معالجے کے جو ہے وہ گھروں پر جانے پر مجبور ہے۔ میرے ساتھ کوئی مریض موجود بھی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا پرچی لینے آئے ہیں، پرچی ملی ہے؟ نہیں جی، پرچی کوئی نہیں مل رہی سر، بڑے پریشان ہے، ٹھیک ہے جی، ساڈے نال مریض ہے، چوتھا دن ہوندا پی آمدے پے ہیں جی، تے کہنا انجے گھر ہی جاندے پے ہیں، رشکے دے کرائے ساڈے کہنا لگدے پے ہیں، تے اسی غریب مزدور بندے ہیں، آپریشن ہے میری سسٹر دا، بڑے پریشان ہے جی، ساڈی حال تے مہربانی کیتی جائے جو ہے وہ دیگر میرے ساتھ مریض بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کب سے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں دینے پر جی، بالکل باندھ جی، کھلو کھلو دھڑی لوگ ہیں، مریض ہے، بڑے پریشانی، بڑے مصروف کھلتے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگ رہی۔ آپ بتائیے گا ماں جی کس ٹائم آئی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میرے کان درد بہت ہے، تو میں دوائی لین آئی ہوں، تو پرچی نہیں دین ڈائے ہجے تک، کی کہتے ہیں؟ کہندے ہجے ٹائم نہیں ہوا، جو نواز شریف کو گا ادو دیواں گے۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مریضوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے گزارش کی گئی ہے کہ صورتحال پر نوٹس لیا جائے، فی الفور جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ہدایات جاری کی جائیں کہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ اپنے دفاتر میں موجود ہوں، تاکہ یہاں پر آنے والے مریضوں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 4 روز قبل پولیس اور ڈاکٹرز کے درمیان تنازع تھا، جس کے باعث ڈاکٹر جو ہے تاحال احتجاج پر ہے، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ نگراں حکومت پنجاب کا احسن اقدام سامنے آیا۔ پنجاب کے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں عوام کے مفت علاج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں گھریلو ملازمین کے علاج کے اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ گھریلو ملازمین ہیلتھ کارڈ پر بھی علاج کروا سکیں گے۔ ہیلتھ کارڈ کی حد سے زیادہ اخراجات کی صورت میں ادائیگی حکومت کرے گی۔ گھریلو ملازمین کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کو 200 ملین روپے کی گرانٹ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مریضوں کو ڈیجیٹل کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے نگراں حکومت پنجاب کا احسن اقدام۔ پنجاب کے سوشل سیکیورٹی ہسپتال کی ایمرجنسی میں عوام کے مفت علاج کی منظوری دے دی گئی ہے۔
जंग में गंदम की ऊंची उड़ान, गंदम की फी मन कीमत में एक रोज के दौरान 500 रुपए का इजाफा, कीमत 4700 रुपए मन से तजावुज कर गई है। ताज़ा कीमत में इजाफे की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दे रही हैं। कहते हैं कीमतों में इजाफे की वजह से आटे की कीमत में भी इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत फौरी प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे। आपको बता रहे हैं जंग में गंदम की ऊंची उड़ान के हवाले से गंदम की फीमन कीमत में एक रोज के दौरान 500 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत 4700 रुपए मन से तजावुज कर गई है। ताज़ा कीमत में इजाफे की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दे रहे हैं। कहते हैं कीमतों में इजाफे की वजह आटे की कीमतों को भी इजाफा का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जंग में गंदम की कीमतों के अंदर जो है मुतवातिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 500 रुपये फी मन के इजाफे के बाद गंदम की कीमत जो है 4700 रुपये फी मन से भी तजावुज कर गई है। इस हवाले से जो है मंडियों के अंदर जो है वो ताजरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदम की कीमतें बढ़ने से आटे की कीमतें बढ़ने का इम्कान है, जिसके भी जो आम आदमी है वो जो है वो डायरेक्टली जो है इसके अंदर जो है मुतासर होने का अंदेशा है। इस हवाले से मेरे साथ ताजिर मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, गंदम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं इस आम आदमी के ऊपर जो है इसका क्या असर जो मुरतब हो सकता है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने 39 रुपये गंदम का रेट सरकारी सतह पे तय किया था। तो जैसे ही गवर्नमेंट की खरीदारी बंद हुई है तो मार्केट जो है शूट अप हो गई है। पहले 4200 पे गया है, अब ये 2-3 दिन से फिर दोबारा रेट 47 हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना जी आटा महंगा हो गया है और गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेचारा बहुत परेशान है। अब गवर्नमेंट को चाहिए इसका जो है ना जी मुसलसल जो है ना अभी गंदम आने को 1 साल पड़ा हुआ है, तो अच्छा लहमल तय करना चाहिए। इससे ये है कि निजी सेक्टर को जो है ना जी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। उसके लिए सुनने में भी आया है कि ना समरी तो पहुंची हुई है लेकिन अभी तक मंजूर नहीं हुई। तो अगर निजी सेक्टर को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है तो इससे खातर खा जो है ना जी रेट में कमी भी हो सकती है और जो है गरीब जो है मजदूर को इससे रिलीफ भी मिलेगा। कहने के अगर प्राइवेट सेक्टर को जो है गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है तो ना सिर्फ जो है गंदम की कीमतों पर काबू पाया जा सकता है बल्कि आम आदमी को भी रिलीफ की फराहमी मुमकिन होगी। और इस से मुतालबा किया जा रहा है ताजरों की जानिब से वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द जो प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे ताकि गंदम की जो बढ़ती कीमतें उस पर काबू पाया जा सके। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जुलाई मार्च 2023 सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से इजाफी वसूलियाँ जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स में की जाएंगी। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 54 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी ता मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। टोबा टेक्सिंग में फेस्को इंतजामिया की गफलत और नाअहली, मोहल्ला जुगनू पार्क में बिजली की तारें और मीटर्स में जा लगे। बिजली की लटकती तारें और मीटर इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि किसी भी हादसे की जिम्मेदार फेस्को इंतजामिया होगी। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फेस्को इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली खुलकर सामने आ गई। टोबा टेक्सिंग के रहायशी सोसाइटी जुगनू पार्क में जो है वो बिजली की तारें और मीटर जो हैं वो मुकर्रर हद से जो है वो नीचे आ गए हैं। बिजली की तारें और मीटर जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। बेहंगम तारें और जो मीटर हैं वो किसी बड़े साने का बायस बन सकते हैं। इस हवाले से जो यहाँ के मकीन उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा कि बिजली की तारें और जो मीटर हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, ये किसी भी वक्त बड़े साने का पेशकमा हो सकते हैं। आपने जो है वो फेस्को इंतजामिया को इस हवाले से कोई दरख्वास्त की है इनको मुकर्रर हद तक जो है वो नस्ब करने के लिए? ये दरख्वास्तें दी हैं इन्हें, ये फेस्को की नाकामी है। आगे भी 2-3 बच्चों को ये शौक़ लगा है, उनको बताया ये जौन सी इन्हें सेट कीजिए, पर वो दरख्वास्तें देने के बाद भी वो आते नहीं हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा सान्या हो सकता है यहाँ पर। आप देख लें यहाँ पर हर तरफ ये मीटर ये लगे हुए हैं, ये किसी की जान का सबब बन सकते हैं, कोई इंसान मर सकता है इससे।
बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। शहरियों का कहना है किसी भी जानी और माली नुकसान की सूरत में जो है वो फेस्को इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार होगी। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार फेस्को इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका ये कहना है कि बिजली की तारें और मीटर जो है वो मुकर्रर हद पर जो है मुकर्रर की जाएँ ताकि किसी भी बड़े साने से जो है बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। छोटे कारोबारी मराकज़ और ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सारिफिन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को ने 50 kVA के ट्रांसफार्मर्स खरीद लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिले बेरहम के मुस्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुमरा रोड फेस्को के मटीरियल स्टोर में जो अब्दुल्लापुर में यहाँ पर मौजूद है। खस्ता हाली जो है वो स्टोर की इस कदर बढ़ चुकी है कि बारिश का पानी जो है वो भी स्टोर में दाखिल हो जाता है। स्टोर की जो छत है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाल है। और ये गेट है जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त टूटा हुआ है, जिसकी वजह से रोड का पानी है वो भी स्टोर के अंदर दाखिल हो जाता है। और यहाँ पर जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ जो मीटर्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं जो बारिश के पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। मगर फेस्को ने आंखें मूंद रखी हैं और अब्दुल्लापुर मटीरियल स्टोर की जो मरम्मत का काम है वो नहीं करवाया जा रहा। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो फेस्को का मटीरियल है वो मौजूद है। जो छत है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जो किसी भी वक्त ज़मीन बोस जो है वो हो सकती है। मगर फेस्को की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। बारिश का पानी ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स में दाखिल हो जाता है और उनकी खराबी का बायस बनता है। यहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं। ना तो जो बाउंड्रीज़ हैं इस स्टोर की वो जो है वो ठीक हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हमें दिखाई देती हैं। छत मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सामान है फेस्को का वो भी खुले आसमान तले पड़ा हुआ है और बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है। फेस्को की जानिब से करोड़ों रुपए सामान के लिए जो है वो खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जा रहे। और अब्दुल्लापुर अवैस हमें बता रहे थे ट्रांसफार्मर्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया अवैस, आपका बता रहे थे कि आइंदा हफ्ते 50 kV के ट्रांसफार्मर्स जारी होंगे, ऐसा कहना है हुकाम का। फैसलाबाद में निशाताबाद पुल के दोनों अतराफ सड़क टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल बन गए। हुक्काम नोटिस लें, शहरियों की दुहाई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में निशाताबाद पुल के दोनों तरफ सड़क टूट फूट का शिकार है, हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों की दुहाई। मजीद शहरियों का क्या कहना है, खलजा वहां मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा खलजा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सड़क जो है वो टूट फूट का जो है शिकार है। शहरी इस वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है अक्सर यहाँ पर जो है हादसा जो है वो पेश आते हैं। अरसे दराज से तरह की यही सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया की, हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद आएंगे, इनकी जाने चलते हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, सड़क की जो है कब से ये सूरत हाल है? कम 3 साल हो गए जी रोड खराब है, तो रोड की वजह तो असीं खुद बीमार होए पे हैं ते गाहक भी इधर दुकान साडे कारोबार बंद होए पे ने। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनकी जाने चलते हैं। क्या कहेंगे आप? बेटा जी तबीयत खराब हो गई है, छाह खराब हो गया, मिट्टी उड़ उड़ के तबाही हो गई आ, कारोबार कोई नहीं रह गए। ऐदा जिवें इत्थे गड्डियां भी उल्टदियां, रक्शे भी उल्टदे आ, यकीन करो बहुत परेशानी हुई पई आ। बराए मेहरबानी करके इहदा कोई हल किया जाए। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनकी जानिब चलते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ये बात करना है, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं? ये ठेकेदार जब थोड़ी अरसा नजर आते हैं फिर उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। ये हालात आप देख रहे हैं, अभी बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, बारिशें आनी है, ये खड्डे बने हुए इधर, सब पानी खड़ा होगा, रक्शे उल्टेंगे, बच्चे वे रक्षों पे होते हैं, औरतें रक्षों पे होती हैं, सब नीचे गिरेंगी। कई जख्मी हमने होते हुए देखे हैं। अल्लाह पाक ने वो हदायत दे। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस सड़क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए और जानी और माली नुकसान से बचाया जाए। मेहरबानी आप। बिल्कुल, एक और शहरी मौजूद है, इनसे की जानिब चल रहे हैं। जी बताइए, क्या आप क्या कहते हैं, किन किन मसाइल का जो सामना करना पड़ा? 3 साल हो गए सड़क खराब हुई, टूट फूट का शिकार है, कोई नज़दीक नहीं बढ़ाने आता, हादसे होते हैं, बारिश होती है, आवाम खराब होती है। तो आप खुदा रहा आप इस पर रहम करें, क्योंकि हादसों से बाजा सड़क तमीर छेती की जाए। गवर्नमेंट से इल्तजा की जाती है कि वो इस सड़क को जल्दी से जल्दी तमीर कराएं। खड्डे पड़े हैं, बसों और लोकल और रक्षों और मोटरसाइकिलों का नुकसान होता है, गिरते हैं, सारा कुछ होता है। लिहाजा बराए मेहरबानी करके इस रोड का हल कोई सोचे, वरना आवाम को जहर देकर
फारे कर दें। जी बिल्कुल, आगे कुछ कहना चाहिए? ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ। जी बिल्कुल, हम लोगों ने शहरियों से जाना। शहरियों का कहना है कि 3 साल से जो जायद अरसा हो चुका है, सड़क की जो है यही सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। शहरी जो सड़क की इस सूरत हाल की वजह से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की इस तरफ कोई तवज्जो दिखाई नहीं दे रही, हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अक्सर जो यहाँ पर हादसा जो है वो पेश आते हैं और यहाँ पर जो है कोई भी जो है अपडेट करने के लिए। और आपको बताएंगे कि झंग के हेड मराला, हानकी और कादराबाद में दरमियाना दर्जे का सैलाब, हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। हेड तरीमों में पानी की आवक 34,667 क्यूसेक जबकि अखराज 21,267 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड कादराबाद से 1,79,000 क्यूसेक पानी का रेला अगले 48 घंटों में हेड तरीमों पहुंचने का इम्कान है। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम महकमों को फ्लड ड्यूटीज पर मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। हेड मराला, खान की कादराबाद में दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड तरीमों के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। हेड तरीमों में पानी की आमद 34,667 क्यूसेक। जंग में फ्लड ड्यूटी से गैर हाजिरी पर पकड़, गवर्नमेंट स्कूल मंडे सैयद के तदरीसी और स्पोर्टिंग स्टाफ के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीईओ एजुकेशन ने 7 रोज में जवाब तलब कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी के दौरे के दौरान स्टाफ गैर हाजिर पाया गया। आपको अपडेट करें, झंग से फ्लड ड्यूटी से गैर हाजिर पर पकड़ हुई है। गवर्नमेंट स्कूल मंडे सैयद के तदरीसी और स्पोर्टिंग स्टाफ के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शोरकोट में महकमा सेहत का अनोखा कारनामा सामने आया है। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में से 1 साल कबल फारिग होने वाला एडमिन ऑफिसर ताहाल ड्यूटी पर मौजूद है। साबिक एमएस डॉक्टर नवीस सफदर ने एडमिन ऑफिसर को नाकिस कारकर्दगी और रिकॉर्ड में हुड-बुद करने पर 2022 में फारिग किया था। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा इस हवाले से। शोरपुर में महकमा सेहत अफसरान का अनोखा कारनामा सामने आ गया है। सियासी पूछना ही है या वजह कोई और है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 1 साल कबल फारिग होने वाला एडमिन ऑफिसर सोहल अनवर जो है वो ताहाल ड्यूटी पर मौजूद है। साबिक एमएस डॉक्टर नवीस सफदर ने एडमिन ऑफिसर को नाकस कारकर्दगी और रिकॉर्ड में खुदबुद करने पर 2022 में नौकरी से फारिग किया था, जबकि सोहल अनवर को 2020 में भी साबिक एमएस पीएचपी अस्पताल डॉक्टर ग्राम स्कूल ने भी अस्पताल से फारिग किया था, मगर फिर महकमाना इंक्वायरी लगा दी गई। लेकिन तकरीबन 3 साल के करीब वक्त गुजर चुका है, मगर ताहाल अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। मगर 2 एमएस के एहतमाद के बावजूद सोहल अनवर तकरीबन 3 साल से पीएचपी अस्पताल में काम कर रहा है। सीओ हेल्थ जंग डॉक्टर अहमद शहजाद और डीएचओ हेल्थ जंग जो है डॉक्टर इस्हाक भी इस मामले से लाइलम निकले हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा 277 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 280 रुपए पर पहुंच गया। आपको डॉलर के हवाले से बता रहे हैं जिसकी ऊंची उड़ानें जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 277.90 पैसे से बढ़कर 280 रुपए पर पहुंच गया है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐसा इक़दाम ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान कर दिया है। ईवान सनत और तिजारत फैसलाबाद में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से हमारे साथ है शिराज बर्ड। बताइए किस हवाले से। 25 अजला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुलाकात की थी मोहसिन नकवी से, निगरान वज़ीर-ए-आला से, और इस मौके पर ताजरों के लिए ख़ास तौर पर एक स्पेशल सेल जो है वो कायम करने के हवाले से जो इतलात सामने आई हैं और इसका फैसला किया गया है, इसको खुश आइन करार दिया जा रहा है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से। मुलाकात में डॉक्टर सजाद अरशद भी शामिल थे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नायब सदर असलम बली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जो मीटिंग हुई है, ये सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी विजिलेंट एंड बहुत एक्टिव आदमी हैं और बड़ी हिम्मत से उन्होंने सारे मसाइल को, बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा करना, पहले ये रूटीन नहीं थी जो अब उन्होंने अडॉप्ट की है, और सब कम्युनिटी की बात, सब लोगों की बातें सुनी हैं, और सुनने के बाद
जो प्रॉब्लम्स थे उनका साथ साथ सोल्यूशन पूरा एलेबोरेट किया है। और जो बोर्ड बनाया उसमें तो उन्होंने गो थ्रू डायरेक्ट करवा दिया ताकि लोगों की उनसे बात हो सके। तो लोगों को मसाइल थे कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही, हमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो इसलिए नहीं खुल रही कि बैंक्स पैसे नहीं दे रहे और आगे सिस्टम नहीं चल रहा। उन्होंने कहा हमने तो ये सारा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा तो सारा सिस्टम ठीक कर दिया हुआ है स्टेट बैंक के जरिए। भली साहब हमारे साथ मौजूद। भली साहब, कितना ज़रूरी है हुकूमती नुमाइंदों का ताजरों के साथ एक लाइजन जो है वो बड़ा मजबूत होना? सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा वज़ीर आला साहब को कि ये मेरी तारीख में तो पहली मरतबा हुआ है कि इस तरह उन्होंने लाइजन किया है चैम्बर्स के साथ और ताजरों के साथ, जिसका बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। 5, 4, 6 साल में तो कम से कम जो है ना ऐसी कोई वर्किंग हुई ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है और सेल बनाना भी बहुत ज़रूरी था ताकि हम किसी एक जगह पे अपनी शिकायत किसी ऐसे फोरम पे जहाँ से हमें फौरी जवाब आ सके और हमें उसको लेके आगे एड्रेस करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए, बजाय इसके कि इंतज़ार करना पड़े। और एक ऐसा सेल कायम होना चाहिए कि जो ताजरों के मसाइल जो है बराह रास्त हल कर सके। तो इस हवाले से टैक्स के मसाइल भी इसी सेल के जरिए हल होंगे। ताजर खुश हैं इस अमल से। बहुत शुक्रिया। शराज बता रहे थे मसाइल के हल के लिए सेल का क़याम जरूरी था, ऐसा कहना है ताजरों का। जंग में जनरल बस स्टैंड को नई जगह मुंतकिल करने पर अहम पेशरफ। टोपोग्राफिक सर्वे के लिए कंसल्टेंट कंपनी की टीमें जंग पहुंच गई। लारी अड्डे की डिजाइनिंग के लिए जमीन लेवल और खदोखाल का जायजा लिया गया। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, झंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो लारी अड्डे की तामीर और उसका PC1 जो था वो पहले मरहले में तैयार हुआ, लेकिन शहर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इसे शहर से बाहर मुंतकिल करने का फ़ैसला जो है वो किया गया। अब नई जगह का तयन जो है वो कर लिया गया है। जर्स और वर्ल्ड बैंक की टीमें जो हैं वो इस वक्त साइट पर मौजूद हैं। इस जगह का सर्वे किया जा रहा है और इसका जायज़ा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रज़ा जो हैं वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा कितनी जगह है और इस वक्त जो इसका नई जगह पर लारी अड्डे का काम है वो किस फेज़ में है? जी, जैसे आपने जिक्र किया कि इसका पहले PC1 हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग GBS था उधर हमने किया था, लेकिन वो जो नीड्स हैं उसको कूप अप उस तरह से नहीं कर रहा था और दूसरा वो कंजेशन रोड रश इतना था कि वो उससे लोगों को इनकन्वीनियंस शहरियों को होती थी। उसके बाद फिर ये हायर लेवल पे ये डिसाइड किया गया कि इसको हम कोई दोबारा सूटेबल जगह देखें, उधर शिफ्ट करें। ये हमने 290 कनाल पे ये गोजरा बाईपास है, जैसे आप देख रहे हैं ये मेन बाईपास है जंग का। इसके साथ आगे फैसलाबाद रोड है, चनियोट रोड भी, जुडिशल कम्प्लेक्स भी इधर बन रहा है। तो ये मोस्ट सूटेबल जगह हमें बाईपास पे मिली है 290 कनाल पे। तो उस पे ये हमने जनरल बस स्टैंड का काम जो है शुरू कर दिया है। ये अभी इनिशियल सर्वे हो रहा है। इस इनिशियल सर्वे के बाद PC1 जो है वो बनेगा, तो इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक पे इस प्रोजेक्ट को लेके तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया रमजान आपका। चिनियोट मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास के बारे में जानेंगे वकार घुमन से। बताइएगा वकार। जी, मुहर्रम उल हराम की आमद है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है। DPO वसीम रियाज भी इसमें मौजूद थे। इसी पर बात करते हैं। सर, मुहर्रम उल हराम की आमद है, इंतज़ामी सतह पे स्ट्रीट लाइट्स, पैच वर्क, दीगर जो काम है वो कहाँ तक पहुँच गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें उलमाए कराम हैं, हमारे हमायदीन हैं, एक तो इनका हमने शुक्रिया भी अदा किया है कि और बिलखुसूस DPO साहब और जितने हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इन सब के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पे इंतहाई एक खुश आइंद फ़िज़ा बरकरार रही और अब मुहर्रम उल हराम का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। तो इस हवाले से जितने इंतज़ामी मामलात हैं इसमें सफाई सुथराई है, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़ हैं, काम कहीं पे पैच वर्क होना है या इंक्रोचमेंट्स का रिमूवल है, तो वो हमने जो हमारे पीस कमेटी है उसके साथ बैठ के हमने सारे मामला तय किए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी नज़र आएगी। सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं मुहर्रम उल हराम? देखिए, जो मुहर्रम से पहले की कुछ मेजर्स होते हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए। ख़ास तौर पे जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो हमने स्टार्ट कर दी। इसके साथ साथ जो लोग किराएदारी पे रह रहे हैं उनको हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। DC साहब को हमने लेटर मूव कर दिए जिसके अंदर ज़बान बंदी और ज़िला बंदी के हवाले से नोटिफिकेशंस हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये अमन कमेटी की मीटिंग्स होगी और हमारे जो सिक्योरिटी प्लान है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल है, जिसके अंदर कैटेगरी A, B, C में जो मजालिस और जुलूस हैं उनको कैटेगराइज करके उनके मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं।
जी बिल्कुल, अमन कमेटी के शुरा की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर तावन की यकीन दहानी करवाई गई है। जी और बहुत शुक्रिया आपका।